Good evening, everyone. This is Kapil Kulkarni, psychologist from Mumbai, and I welcome you all on behalf of Kirti Psychological Care Center. Kirti Psychological Care Center is a group of psychologists, psychiatrists, and mental health professionals. We are working across the nation. And today, our coordinator is Kuki Mahanta. Kuki Mahanta is a child psychologist and a parenting coach from Guwahati, Assam. And please welcome our today's guest, Dr. Manisha Singhal. Dr. Manisha Singhal is a clinical psychologist and psychotherapist from Metro Hospital and Apollo Hospital. Welcome, ma'am. And today's our we are going to discuss about the topic. The topic is depression. Do not struggle in silence. So first of all, as we all know, depression is a mental disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. So I'd like to know from Dr. Manisha Singhal. So, madam, first of all, we will know what is depression and its definition. I can't hear you. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. Madam, we would like to know from you the definition of depression. I can't hear you, Mr. Kapil. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. Mr. Kapil, आप कुछ बोलिए. Yeah, madam, we would like to know from you the definition of depression and what are the types of the depression. So, depression नाम से ऐसा लगता है कि कुछ unhappiness, sadness, sorrow. So basically unhappiness जो होती है एक बहुत common symptom है, psychiatric symptom जो signify करता है depression को. And depression is a hidden disease basically. तो depression अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोगों में reflect होता है. Broadly अगर देखें तो depression दो टाइप का होता है, unipolar and bipolar. And unipolar जो depression है, that is actually a main depression जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें major depression एक आता है, एक chronic जिसे हम dysthymia बोलते हैं, and then atypical. So atypical में generally क्या होता है, symptoms कभी appear होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो उसमें happiness भी person feels the happiness also. तो उस इंसान के लाइफ में हैप्पी फेजेस भी होते हैं और वो हैप्पीनेस फील भी करता है, लेकिन ये एक हिडन डिप्रेसिव जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली वो हिडन होते हैं. और आजकल जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो आजकल डिप्रेशन के केसेस काफी बढ़ गए हैं. एज पर WHO ऑल्सो 61% केसेस डिप्रेशन मेंटल इलनेस के हैं और 20% राइज हुआ है मेंटल इलनेस में ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड विदिन 3-4 months. And depression is, as per WHO again, depression is one of the second leading cause of suicide. And madam, as per the survey done by National Mental Health Survey in the 2015 and 16, they say that 15% of Indian needs psychological help. But the problem is most of the Indians, they don't know they have any psychological problem like depression or something like that. So what are the symptoms, signs and symptoms of this depression? Signs and symptoms इसमें appetite effect होती है, sleep pattern change होता है और irritability थोड़ा सा बढ़ जाती है, aggression किसी में aggression बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस isolated कुछ केसेस ऐसे हैं जो आइसोलेटेड रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते,
फैमिली और फ्रेंड्स से थोड़ा सा कतराने लगते हैं, थोड़ा अलग रहने लगते हैं, उनसे मिलना जुलना कम कर देते हैं। और कुछ जो सीवियर केसेस होते हैं, कुछ जो इंटेंस केसेस होते हैं जो सुसाइड को इंडिकेट भी करते हैं, तो उनमें सुसाइडल थॉट्स भी रहते हैं। Yeah, and can depression lead to the suicide also? बिल्कुल, डिप्रेशन एक रीजन है सुसाइड का, एक कॉज है सुसाइड का, लेकिन सुसाइडल केसेस जितने होते हैं उनमें एक इम्पल्सिव नेचर जनरली देखी जाती है, वो रहती है। और जो सुसाइड है ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन उसको हम रोक कैसे सकते हैं? अगर हम उनसे बात करें, या अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके फैमिली फ्रेंड्स या अगर वो कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो उनसे बात करके इसको हम रोक सकते हैं काफी हद तक। And what are the causes of depression, madam? Causes, family history, one of a cause। अगर फैमिली में इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई डिप्रेस्ड रहता है, कोई दुखी रहता है, या सब्सटेंस अब्यूज, रिक्रिएशनल ड्रग्स पे अगर कोई है, अल्कोहल पे है कोई, अल्कोहल का रेगुलर वो यूज कर रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, या फिर लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ लव्ड वन, सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारे कुछ कॉजेज रहते हैं मेजरली जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। या कोई साइकियाट्रिक इलनेस, कोई क्रोनिक साइकियाट्रिक इलनेस मेडिकेशन पे अगर है या नहीं है, तब भी अगर कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो दैट इज अनदर कॉज ऑफ डिप्रेशन। So most of the people, ma'am, around us, किसी ना किसी टाइप का डिप्रेशन है और they are going through some stress और anxiety. So ये सब कॉम्बिनेशन में लोगों को पता नहीं चलता कि is it normal, मतलब ये it's a part of life, so we have to cope up with it, कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। तो इन सब केसेस में हाउ टू इवैल्यूएट दिस डिप्रेशन, क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। आप फिर से बोलिए अपना क्वेश्चंस। आप Yeah, ma'am, what are the how to evaluate this depression and what are the clinical stages of depression? देखिए, इवैल्यूएट करने के लिए कुछ साइंस सिम्टम्स मैंने आपको बताया। अगर आप सेल्फ चेक करते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है आपका रूटीन कितना इफेक्ट हो रहा है, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना काम पे कितना फोकस कर पा रहे हैं। लैक ऑफ फोकस अगर आपका है तो भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। या आप फोर्स्ड हैप्पीनेस, आप कुछ अच्छा हो रहा है जो आप पहले आपको खुशी होती थी वो देख के, लेकिन अभी आप खुशी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमें कई बार ऐसा होता है वीडियो पॉज हो रहा है। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. कई बार ऐसा होता है कि हमारी एपेटाइट भी इफेक्ट हो जाती है एंड स्लीप पैटर्न में चेंज होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया, या क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें लगता है, हमें थोड़ा सा आइडिया लगने लगता है कि हाँ, हमें जो परसिस्टेंट एक अनहैप्पीनेस होती है, एक लो फील करना। तो एक तो होता है नॉर्मली हमें कुछ अच्छा मिला, हमें अच्छा लगा, अगर कुछ नहीं मिला तो हमें दुख हो रहा है, जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। तो ये नॉर्मल एक लो और हैप्पी फेजेस हो गए। दूसरा, परसिस्टेंटली यू आर फीलिंग लो, सो दैट इज डिप्रेशन। उसके लिए कुछ इन्वेंटरीज होती हैं, कुछ चेकलिस्ट होती हैं, जैसे कुछ कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें पैक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी है, या इसमें हम पर्सनालिटी असेसमेंट भी करते हैं, तो उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So, ma'am, in this depression, what is the solution? मतलब how to treat this depression and what is the solution? What is, sorry? Solution. What is the solution? How to treat this depression? Solution. Okay. Solution.
देखिए, सबसे पहले कुछ हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेरोटोनिन। मैं आपको ये एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी। सो सेरोटोनिन, अगर आप उस इंसान से आप हैप्पी मेमोरीज के बारे में बात करें, तो सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके लेवल्स अगर नॉर्मल रहते हैं या थोड़े से रेज्ड रहते हैं, तो वी फील बेटर, वी फील हैप्पी। तो ये कैसे लेवल्स इसके बढ़ते कैसे? So if we talk about happy memories, if we consume coffee, not much, पर हाँ थोड़ा बहुत कॉफी अगर हम ले रहे हैं, या अगर हम रूटीनली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जैसे योगा या कोई भी एक मॉडरेट स्पीड में, बहुत इंटेंस नहीं, तो सेरोटोनिन लेवल्स उसमें थोड़ा सा बैलेंस्ड रहते हैं, जिससे वी फील बेटर। अनदर सोल्यूशन इज कि कोई उनके आसपास हो जिनको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो उनसे कुछ बातें कर सकते हैं, उनके साथ में रहें, या जो उनको पसंद है वो चीजें वो उनके लिए प्रोवाइड करें। या साइकोथेरेपी, इसमें साइकोथेरेपी भी अगर होती है, साइकोथेरेपी में कुछ चीजें होती है, द वे वी टॉक टू द डिप्रेस्ड पर्सन, तो उससे पर्सन फील्स बेटर, उससे भी सेरोटोनिन लेवल बढ़ते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। साथ में अगर हम उसका कॉज क्या है, अगर हम वो जानना चाहें, उस कॉज को अगर हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहें, जैसे अगर किसी का जॉब चला गया है, या अगर स्पाउस से कुछ फ्रैक्शंस है, सेपरेशन हो गया है, या रिलेशनशिप, जनरली रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर हम उस बारे में डिस्कस करें, तो ऐसा नहीं है किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसमें मेजरली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, या इंटरपर्सनल थेरेपी है, साइकोडायनामिक थेरेपी है, टॉक थेरेपी है, ये सब थेरेपी काम करती है। एंड साथ में इसके मेडिटेशन और थोड़ा सा एक्सरसाइज, जो चीज़ें उनको पसंद है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हमें अगर उनके साथ हम उन एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड करें, तो आई थिंक काफी हद तक हम उनको वापस ला सकते हैं। Okay. Ma'am, for example, if a person can do the regular yoga or the whatever activity he likes, whatever sports he likes, तो उसमें अगर वो इन्वॉल्व हो जाए, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा रिलेशंस इम्प्रूव हो जाए उसके, सो बेसिकली बीइंग हैप्पी इज द ओनली सॉल्यूशन, जिससे सेरोटोनिन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। सो दैट हेल्प्स इन हेल्प्स टू कोप अप विद डिप्रेशन, राइट? तो मैम, अभी इन करंट सिचुएशन इन दिस लॉकडाउन फ्रॉम 3 to 4 months पीपल आर एट होम, सो ये सब केस में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ओवरऑल सब जगह पे। सो इन दैट सिचुएशन मैम, व्हाट आर द प्रिवेंशंस टू बी टेकन? क्या करना चाहिए और क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे है, फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब का टेंशन है सबको, फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी काफी है फ्यूचर के बारे में। सो what care need to be taken in this situation? उसको हम डिप्रेशन एक्चुअली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, तो कुछ ना कुछ एंजाइटी या स्ट्रेस में उसको हम रख सकते हैं, और उसके लिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या कुछ अवेलेबल और हम करा सकते हैं अपने लिए। कभी हमें खुद को एक्सप्लोर करने का इतना मौका नहीं मिला, तो अभी दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड यू नो सी आउट ऑफ द बॉक्स, और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, या थोड़ा सा पेशेंस रखे। ठीक है, अगर काम अभी ऐसे सोच लें कि अभी हम जो भी कुछ जैसे भी करके खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ महीनों बाद हम किस तरह से अपना काम नई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या और बेटर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सारा होमवर्क हम कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हम कर सकते हैं, जिससे हम अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत कुछ है अवेलेबल ऑनलाइन, जिसमें हम खुद को इंडल्ज करके और डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हर चीज का सोल्यूशन है, और अगर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, तो अवॉइडेंस इज आल्सो अ सोल्यूशन। सो उस चीज को हम कितना अवॉइड करके खुद को इफेक्ट ना होने दें। अभी जो टाइम है उसमें हम अगर अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करें तो अच्छा होगा, फिजिकल वेलबींग पे काम करें तो अच्छा होगा। जितना भी काम चल रहा है उसमें और कुछ क्या नया हो सकता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा सडनली ऐसा सब कुछ हो जाएगा।
ठीक है, लेट्स हैव चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए. इट्स आल्सो अ लर्निंग. यही तो लाइफ की लर्निंग है एंड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक. अगर हमें ये आ जाता है तो हमें अपनी लाइफ जीनी आ जाती है. कंफर्ट जोन में रह के तो हम सभी आज तक करते ही रहे हैं सब कुछ. Yeah, and even in teenage group, ma'am, from 13, 14, 15 to almost 21, 22 तक, ये जो एज ग्रुप है, इसमें आजकल मैम डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. सुसाइडल टेंडेंसीज, एग्रेशन, ये सब केसेस इन प्रीवियस कुछ 10-12 सालों से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब केसेस इन कैटेगरी में. सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल दिस एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस? अभी तो जो रिसेंटली जो केसेस बढ़े हैं वो इसलिए कि सब कुछ वर्चुअल हो गया है, तो आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं फिजिकली जाके अपने फ्रेंड से. मोस्टली टीनेजर्स, एडल्ट्स, जो एज ग्रुप आपने मेंशन किया अभी, वो लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं. काफी सारी एक्टिविटीज रहती थी जिसमें वो साथ में मिलते थे, आपस में खेलते थे, बात करते थे. वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा है. पार्टी करते थे साथ में. तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोका जा सकता है. कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है और ना ही कोई ऐसा मेजर डिप्रेशन हो गया, क्रोनिक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो हम खुद को भी खुश रख सकते हैं और अपने आसपास जो लोग हैं हमारे, एक नई तरीके से ये सोच के कि हाँ एक नया फेज है लाइफ का, तो इसको हम कैसे ब्यूटीफुली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं. तो we should take it as a challenge and staying happy is actually good. आपके लिए भी और सबके लिए भी जो आपके आसपास है. What is the medication generally used for this depression? कोई medication specific होता है कि category wise कौन सा use होता है? Medication से हमारा कोई लेना देना नहीं है. Medication के लिए psychiatrist हैं तो वही बता सकते हैं. ये हमारा एरिया नहीं है. और एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि जो स्ट्रेस होती है, मोस्टली ये कहा जाता है कि 10% स्ट्रेस है, लेकिन 90% उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर, वो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. सो 90% इज आवर रिएक्शन. 10% केवल वो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है. हम अपनी रिएक्शंस, अपनी रिस्पॉन्सेस, अपना देखने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें तो हमें कुछ नई चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी, हो सकती है. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your suggestions. And madam, I want to request our audience to ask their question if they want to ask any question to doctor. Please ask your questions. Madam, the person who is normal, who is not suffering for any depression, so to avoid this depression, what he can do? उसको मतलब अभी डिप्रेशन है ही नहीं. In future he don't want to face it. Yeah, in future उसको नहीं होना है, तो क्या precautions वो ले सकता है? फियर ना रखें किसी चीज का तो डिप्रेशन नहीं होगा, या कोई भी बीमारी नहीं होगी. किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज का जब हमें फियर होता है तो हम उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं. सो व्हाई डू थिंक अबाउट व्हिच वी ऑलरेडी डोंट हैव, जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसके बारे में सोचना. और अगर सोच रहे भी हैं, सोचना शुरू कर दिया है, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, हमें उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हो जाता है तो हम फिर क्या करेंगे. सो वो प्लान हमें थोड़ा बनाना चाहिए. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable inputs and valuable information. So with this, we'll conclude our session. Thank you so much, everyone. Thank you very much for your time. Thank you very much. Good.